आंख में पानी रखो, होठों पे चिनगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों। दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। आते जाते पल ये कहते हैं हमारे कान में, कूच का ऐलान होने को है, तैयारी जारी रखो। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। नींद रखो या ना रखो, ख्वाब जारी रखो। आंख So, thank you. So, hello and good evening to everyone who is present over here today to attend 176th Graduate Scholar Talk Series. I welcome you all in the academic platform of GSTS. GSTS, that is Graduate Scholar Talk Series, is a platform which hosts weekly academic talk in which is associated with socio-economic, scientific, politico-philosophical issues. The platform provides speaker a one spot where they can think, learn, research, practice, and put their thoughts fearlessly yet mindfully on the topic of their own choice. And this is what we celebrate every week at 5 p.m. today here. That is an art of articulation. We have hosted 175 talks till date, and I would like to introduce you to a small team behind this initiative. Ms. Manvi Saraswat, Mr. Shailendra Rathor, Manthan Tarale, Mr. Shubham, Ms. Samriddhi, Mr. Saurabh, and Ajay. Of course, under the guidance of Dr. Manish Karamwar, this Graduate Scholar Talk series has been his brainchild altogether. So, first of all, today, let me introduce you all to our guest of honor. And it is my great honor to introduce Mr. Saurabh sir, our today's guest of honor today. Saurabh sir is a senior research fellow and PhD scholar in the Department of African Studies at the University of Delhi. He has a distinguished academic background, having earned his BA in political science from Deshbandhu College and MA in political science from Hindu, and an MPhil focused on the geostrategic significance of the Vanilla Islands. Sir's research area focused on the Indian Ocean highlights India's strategic interest in this vital region. His publications span significant topics, including the dynamics of Pakistan's leadership, geostrategic positioning in the Indian Ocean, and the engagement of China and India in Africa. His insightful analysis have been featured in reputable journals, contributing to our understanding of internal relations and geopolitical strategies. Sir has also presented his work at various international conferences discussing the history and identity of African Indians, Gandhi's philosophies, sustainable development, challenges, and Turkey's role in Africa. His teaching experience at institutions like IGNU and the University of Delhi further showcases his dedication to education and research. Sir, we welcome you here. And I would like to take your permission. I would like to take your permission to call today's speaker, Miss Gungun Dubey, for having a talk on global justice. So please. Thank you, Ajay, for the wonderful introduction. Thank you, Manisa, for inviting me as the guest of honor. I feel privileged to be here as the guest of honor. I have been associated with this platform for last around 2 years, but today I am here as the guest of honor, so that's really great. And I thank you to all the members of the GSTS program. You know, it's one thing to take an initiative and another to carry it forward to create a legacy. And you guys have been successful in creating a legacy for so long. And on a lighter note, I remember last Diwali sir sent me the link, and I was surprised. I thought, who is gonna join the meeting? This is Diwali evening, and who is going to join the meeting? But then I knew that I was up for so many surprises. So come what may, uh, you will not stop your program for anything. Be it World Cup, Lok Sabha election, IPL. So that's really commendable. And thank you so much. And best wishes to you, Gungun. Gungun, all the best. Thank you. Thank you so much, sir. So good. Please carry forward your talk. Thank you so much. A very good evening to all beautiful minds present here. My name is Gungun Dubey. I have done my graduation from Rajdhani College, University of Delhi, and currently I am preparing for the competitive examination. Firstly, I would like to welcome to the chief guest, Mr. Saurabh sir. Thank you so much, sir, for your valuable presence today. And then I would like to thank you to Dr. Manish sir and Manvidi for cooperating me and guiding me throughout this journey.
So I've choose the topic which is global justice. So why global justice? Global justice, it's a new term for me, and I'm very interested and I'm very keen interested to know about new learnings. So that is why I've chose this topic. So here my objectives here. Firstly, we will able to understand the meaning of global justice, its approaches, and why do we need global justice. Secondly, we will know the main thinkers of global justice, Indian and Western political thinkers. Thirdly, we'll give light on the global concern, which is climate change, poverty, women's security, and the success story and the failures of global justice. Lastly, we will know that what are the organizations who are working for global justice and how can we help to establish global justice on a global level. So, global justice. Global means refers to whole the world, and justice, it's all about freedom of speech, freedom of choice, distribution of resources, just treatment of individuals. Global justice talk about justice beyond the border. Global justice talk about a world state that पूरा विश्व एक राज्य है, और जैसा कि भारत बात करता है कि वसुधैव कुटुंबकम की, अर्थात कि हमारा जो विश्व है वह हमारे परिवार है। तो जिस प्रकार जो हमारी जो निष्ठा और जो कर्तव्य अपने परिवार के लिए होती है, उसी प्रकार की निष्ठा और कर्तव्य हमें अपने इस विश्व के लिए करने चाहिए। तो global justice have three main approaches. First is cosmopolitanism, second is communitarianism, and third one is realism. कम्युनिटेरियनिज्म कॉस्मोपॉलिटनिज्म बात करता है इंडिविजुअल जस्टिस की ऑन अ ग्लोबल लेवल। यह बात करता है जस्टिस बियॉन्ड द बॉर्डर्स, नॉट अ पर्टिकुलर स्टेट और नॉट विद इन अ पर्टिकुलर रीजन। यह बात करता है ग्लोबल गवर्नेंस की, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी की, कि हमें एक साथ मिलकर अगर ग्लोबल जस्टिस स्थापित करनी है पूरे विश्व में तो हमें एक साथ कार्य करना होगा। कम्युनिटेरियनिज्म बात करता है स्टेट सेंट्रिक व्यू, स्टेट सेंट्रिक जस्टिस की। यह बात करता है, यह स्ट्रेंथन करना चाहता है उस स्टेट के और उस सिटीजन जो उसमें रहते हैं उनके जो संबंध हैं उनको और ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाने की बात करता है। रियलिज्म बात करता है स्टेट सॉवरेंटी एंड डिग्निटी की। इट डजंट टॉक अबाउट द ग्लोबल जस्टिस और द अदर नीड्स ऑफ पीपल, इट्स सुप्रीम देयर स्टेट, देयर सॉवरेंटी and that dignity. So let's move on the why we need global justice. What are the reasons that we need global justice? As poverty, hunger, human rights, gender inequality, migration, terrorism, global security, global healthcare, और ऐसे कितने ही ना जाने कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है जिन मुश्किलों का ग्लोबल जस्टिस सामना कर रहा है। Now move on to the thinkers who talks about global justice. Indian political thinkers who talks about global justice. बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। वह दो बात कहते हैं। पहला वो कहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वह वैश्विक भाईचारे की बात करते हैं। उनका मानना है कि अगर हमें वैश्विक स्तर पर न्याय स्थापित करना है तो हमें मानव एकता का सूत्र अपनाना होगा, सभी को महत्वता देनी होगी, सभी की जस्टिस, सभी की न्याय, सभी की इज्जत का हमें ख्याल रखना होगा, सभी को बराबर मौका देना होगा और गरीबों के उत्थान की बात करनी होगी। वह कहते हैं सर्विस टू ह्यूमैनिटी। उनका मानना है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उनका मानना है कि अगर हम मानवता की अगर हम सेवा करते हैं तो हम गॉड की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वह बात करते हैं सोशल जस्टिस की। वह समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है और भेदभाव है उसको मिटाने की बात करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, वह बात करते हैं सर्वोदय की। सर्वोदय अर्थात यूनिवर्सल एनलाइटमेंट। सर्वोदय मतलब सबका विकास। वह बात करते हैं कि सभी का विकास एक साथ होना चाहिए और इसको मुकम्मल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए हम सभी को साथ आना होगा और समझना होगा कि समाज में और हमारे आसपास जो भी भेदभाव और जो भी अन्याय की जो चीजें हो रही हैं वह हमें समझनी होगी। वह बात करते हैं अहिंसा की, वह बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, वह बात करते हैं लोकलिज्म की, वह कहते हैं कि
अगर हमें किसी भी राज्य, किसी भी राष्ट्र का अगर उत्थान करना है, वहाँ के लोगों का सर्वांगीण विकास करना है, तो वहाँ की जो सबसे छोटी यूनिट, जो गांव होते हैं, हमें उनका विकास करना होगा। गांव से कनेक्टेड समाज होता है, समाज से कनेक्टेड राज्य, राज्य से पूरा एक राष्ट्र निर्मित होता है। अगर सभी राष्ट्र इस बात को समझ ले, तो हम ग्लोबल जस्टिस को एक्चुअल तौर पर पूर्ण कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डिस्क्रिमिनेशन के प्रति लड़ाई करी, दलित कम्युनिटी के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके उत्थान की बात करी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात वो करते हैं, सोशल जस्टिस की बात वह करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें किसी देश को, किसी राज्य को आगे बढ़ाना है, तो वहां के जितने भी लोग हैं उनको एजुकेशन देनी होगी, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करनी होगी। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन बात करते हैं कैपेबिलिटीज की। उनका मानना है कि अगर हमें किसी भी राज्य, किसी भी देश की अगर हमें विकास करना है, उनकी जो समस्या है उनको ठीक करना है, अगर हमें बराबरी लानी है समाज में, तो वहाँ का जो पॉवर्टी, जो गरीब लोग जो जिस पॉवर्टी की लाइन में रह रहे हैं, हमें उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी होगी, उनकी एजुकेशन को ज्यादा बढ़ाना होगा, एजुकेशन फैलानी होगा, विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी होगी। वह बात करते हैं न्याय और नीति की। उनका मानना है कि अगर नीति किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, किसी भी गवर्नेंस या किसी गवर्नमेंट द्वारा बनाई जा रही है, तो हमें उसको देखना होगा कि वह न्यायोचित तरीके से जमीनी स्तर पर जिन लोगों के लिए वह बनाई गई है, क्या वह उन तक पहुंच रही है या नहीं। तो वह न्याय और नीति की बात करते हैं। Now move on to the Western political thinkers. इसमें इमैनुअल कांट की बात आती है। इमैनुअल कांट कॉस्मोपॉलिटिज्म व्यू को सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि अगर हमें वैश्विक स्तर पर न्याय स्थापित करना है, तो सभी राष्ट्रों को सामंजस्य से और कोऑर्डिनेशन से हम ये चीज मुकम्मल कर सकते हैं। वह बात करते हैं परपीचुअल पीस की। परपीचुअल पीस है निरंतर शांति, चिरस्थायी शांति। इस शांति को स्थापित करने के लिए वह कहते हैं कि सभी राष्ट्रों को अपने डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको स्ट्रेंथन करना होगा, जो सभी नेशंस हैं उनको साथ आना होगा, और से नो टू वॉर की वह बात करते हैं। जॉन रॉल्स का कहना है कि न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था करने के लिए, न्याय स्थापित करने के लिए हमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। संस्थानों में जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको बदलना होगा। और अब बात करते हैं थॉमस पॉगे की। थॉमस पॉगे बात करते हैं कि जो संस्थागत सुधार हैं, वैश्विक गरीबी को खत्म करने के लिए हमें संस्थाएं जो है उनका सुधार करना होगा। वह कहते हैं कि क्यों जो कंट्रीज हैं वह गरीब रह गई। वह तीन बात कहते हैं। पहली कि जितना भी जो डेवलप वर्ल्ड है उसने उपनिवेशवाद, नरसंहार और गुलामी द्वारा गरीब देशों का दोहन किया है, उनका शोषण किया है, जिसके कारण वह सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो सके। दूसरा, वे कहते हैं कि जो विकसित देश हैं उन्होंने गरीब देशों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया अपने लाभ के लिए और उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। उनका मानना है कि तीसरा, वो कहते हैं कि जो वैश्विक स्तर पर जितनी भी आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष करते हैं, वह निष्पक्षता से कार्य नहीं करते हैं पूरे विश्व की विकास के लिए। वह कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज की ओर झुके हुए हैं। नाउ मूव ऑन टू द concerns that I have told. First is climate change. So what is climate change? It's the most significant challenge to global institute in 21st century. It's referred to a long shift change in the average weather pattern that have come to global warming, and it's the reason of climate change. These shifts may be natural, यह बदलाव है नेचुरल भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, परंतु कहा गया है एक शोध के अनुसार कि जो ह्यूमन ने जितनी भी क्रियाएं करी हैं, फॉसिल फ्यूल्स, गैस और कार्बन एमिशन का जो एकदम से उत्पादन बढ़ा है और जो यूज बढ़ा है, उसके कारण मानव ही क्लाइमेट चेंज को बदलने का एक सबसे बड़ा कारण बताया गया है। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम हीट वेव्स, राइजिंग सी लेवल्स, खाद्य एवं जल सुरक्षा से संबंधित परेशानियां।
According to the NASA Goddard Institute for Space Studies, the global average surface temperature has risen approx 1.2 degrees Celsius. Greenhouse gas emission, carbon dioxide level have increased by more than 40% since the pre-industrial times. कि जिस प्रकार यह क्लाइमेट चेंज के कारण धरती का तापमान बढ़ता और बदलता जा रहा है, उससे विभिन्न प्रकार की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है. Melting ice rising sea level. Global sea level have risen by about 8 inches since 1818 according to United States Geological Survey. Countries who are affected by climate change are there. EU, according to French Ministry of Ecology, heat wave in 2019, Europe experienced as a drastic heat wave with a temperature in France reaching by 46 degrees Celsius. In Australia, according to the Australian National University, to the 2019 to 20, the bushfire season known as the Black Summer burnt over 18 million hectare acre land, destroyed over 3,000 homes and affected nearly 3 million animals are affected from this climate change. So let's move on. What is poverty? Poverty is a complex and a multifaceted issue that arises from a combination of economic, social, political, and environmental factors. Economic factors like unemployment, underemployment के कारण जो लोग हैं वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है, social factors, lack of education, discrimination, health issues, government policies, corruption, environmental factors like natural disaster, climate change, जिसके कारण लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, अपनी जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उनका जो भी समृद्धि है, वो छोड़ के दूसरी ओर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, जिसके कारण वो भूखमरी और गरीबी जैसी जो भयावह स्थितियां हैं, उनसे जूझते हैं. According to the World Bank, around 9.2% of the global population live on less than 1.9 cent dollar a day in 2021. Sub-Saharan Africa and South Asia have the highest rates of extreme poverty. It is 700 million people who are living below poverty line. According to the WHO, the malnutrition in children in 2022, 149 million children are under malnutrition. वह अल्प पोषित है, जो उनका भरण पोषण हो रहा है वह सही प्रकार से नहीं हो रहा है. अगर उनकी जो बेसिक नीड्स है वह पूरी नहीं हो रही है तो किस प्रकार वो न्याय की स्थापना कर सकेंगे, किस प्रकार वो न्याय को समझ सकेंगे. उनकी जो दैनिक आवश्यकता है वही पूरी नहीं हो रही है. According to International Energy Agency, in all the global world, 775 million people are lacked access to electricity. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्राप्त हो रही है, तो किस प्रकार हम स्थापित कर पाएंगे ग्लोबल जस्टिस. Let's move on. What is women's security? Women's security refers to the protection of women's rights, safety, and well-being in all aspects of life, including physical, emotional, social, and economic spheres. So why we need women's security and why it is important? It's the aspect of human rights. Women plays a great role in economic welfare to their country, social stability, health and well-being of their country. According to the data and statistics, according to the report of United Nations, that 1 in 3 women worldwide have experienced physical or sexual violence. According to the World Bank, that said gender-based violence can cost economies up to 3.7% of their GDP due to loss of productivity and expenses.
according to Agency for Fundamental Rights, said that women have harassment, cyber, and all over the world from age 15. According to the UNICEF report, that in South Asia, 80% of women aged 20 to 24 were married before age 18. According to International Labour Organization, that the global labor force participation rate for women is 47%. According to UNESCO, that 130 million girls worldwide are out of school. इतनी बड़ी संख्या में जो वुमेन्स हैं वह स्कूल से बाहर हैं, एजुकेशन है उन्हें नहीं प्राप्त हो रही है, तो यह बहुत ही दुख की बात है. According to the German Federal Criminal Police Office report, that over 148,000 cases of domestic violence, with the majority of victims being by women in Germany. A report according to 2021 Australian Institute of Health, that welfare of a woman, 70% of women aged 15 to older are experiencing violence by their partner. So let us move on the success stories of global justice. So गाम्बिया ने म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या मुसलमान का जो नरसंहार हुआ था 2017 में, उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक मुकदमा दायर किया और उस कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि वह उस पे एक्शंस लेंगे और जो भी उनकी तत्कालिक उपाय है वह लागू किए जाएंगे उनके कल्याण के लिए. यूगोस्लेविया के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकार ने बोस्निया के पूर्व सैन्य कमांडर रत्को मालेदिच को नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा दी गई. इसके अंतर्गत 161 जो व्यक्ति हैं वह दोषी पाए गए और उनको सजा दी गई. बात करते हैं असफलताओं की, ग्लोबल जस्टिस की असफलताएं. पहला, इजराइल और फिलिस्तीन वॉर. यह वॉर दशकों से चली आ रही है, उनके बीच दशकों से यह जो संघर्ष है चला आ रहा है. इससे जाहिर होता है कि वैश्विक न्याय कहीं ना कहीं ढीला पड़ गया है या कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है इनके संघर्ष को या इनके बीच जो भी वार्ताएं चल रही हैं, जो भी लड़ाइयां चल रही हैं उसको सुलझाने में. रूस यूक्रेन संघर्ष. रशिया द्वारा 2022 में यूक्रेन पर जो आक्रमण हुआ उसके कारण लाखों लोग विस्थापित हुए, लाखों लोगों की जानें गई, परंतु रशिया ने इस पे कोई भी अपना जो दायित्व है वह नहीं माना, अपनी गलती नहीं मानी. यूएस द्वारा और बहुत कंट्रीज द्वारा इसका विरोध किया गया इस आक्रमण का. तो इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल जस्टिस है वह एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, यह इसकी असफलताएं हैं. So let's just move on the international organizations who are working for global justice. First, United Nations की Human Rights Council, United Nations Development Programs, United Nations Environment Program, International Criminal Court, World Health Organization, International Monetary Fund, World Bank, International Labour Organization, and there are some NGOs who are working for global justice are Human Rights Watch, Doctors Without Borders, Medicine Sans Frontier, MSF, Greenpeace, Transparency International, the International Red Cross and Red Crossman Movement, Care International. So how can art action and how can we help to establish global justice on a global level? First, donate to the organization who are working for global justice, like to make the things overcome, like poverty, women empowerment. However we can help them by our knowledge, by money, or our time, we can give it.
we should give it voluntary. We should contribute our time and skills to the needy people or the organizations who want to our support. We should educate ourselves. If we will educate ourselves, then we will able to understand that what is right, what is freedom. Then we will able to fulfill our हम अपनी जरूरतों को भी पूरा कर पाएंगे और जो समाज में है उसके लिए भी हम कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। एडवोकेट करके जो भी नीतियां और रूल्स गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, हमें उनको एनालाइज करना चाहिए, देखना चाहिए कि वे हमारे लिए है, हमारे लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो हमें सरकार से जवाब मांगना चाहिए, वे हमारे लिए जवाबदेही हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। Okay, thank you so much, Gungun. That was really a very nice presentation. आपने कई सारी चीजों को इकट्ठा करके और एक chronology आपने बहुत अच्छी पेश की। तो उसी को ध्यान में रखते हुए there are certain queries and questions that have been asked by the people. So I would like to ask you one by one and आप उसको brief में answer कर सकते हो, right? So the first question, मैं पहला question आपसे पूछ रहा हूँ। जो first question है गुनगुन, आपको आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। Ajay is audible. Okay, sir, am I audible? Yeah, go ahead. Yeah, go ahead. Okay. Sorry for the repetition, interruption. Okay, so Gungun, the first question I'm asking you, and the question was, I'm combining both the questions. The question being asked by Akriti ma'am and the Shailendra together. The question was कि जो आज का समय है वो नव उपनिवेशवाद का है। तो आप इस समय में और इस ग्लोबल एरा में आप कैसे मेंटेन करोगे ग्लोबल जस्टिस को या ग्लोबल पीस को आप कैसे इंश्योर करोगे, मेंटेन करोगे? दूसरा, जो अंतरराष्ट्रीय निगम है या जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनका रोल क्या है और उनके चैलेंजेस क्या हैं इस ग्लोबल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए? गुनगुन। Am I audible? Yes, perfectly. Yes, very nice question that I have discussed in the talk that जो problems हैं वो मैं पहले ही discuss कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि जो global justice है world wide क्या problems face कर रहा है, poverty, migration, refugees, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि सभी नेशंस को यह कंसर्न समझना होगा कि यह प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है। हमें कलेक्टिवली साथ आना होगा, इसके कंसर्न को समझना होगा कि यह सारे देशों पर जो इसका है परिणाम पहुंच रहा है और सारे देश के और सारे राष्ट्र के जो विश्व के जो लोग हैं जो भी इसमें रह रहे हैं वह इसका सामना कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली हमें नेगोशिएशन टेबल पे आकर वार्ताएं करनी होगी, समझना होगा और सारे राष्ट्रों को कोऑर्डिनेट होकर और सामंजस्य बनाकर इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ओके, वेरी वेल। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट शुड नेशंस बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आउटसाइड देयर बॉर्डर्स? यानी कि किस हद तक आप नेशंस को या राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराएंगे कि जो वायलेशन होते हैं ह्यूमन राइट्स के उनके बॉर्डर्स के बाहर होते हैं? तो हाउ कैन यू हेल्ड अकाउंटेबल अ नेशन कि यू नीड टू स्पीक ऑन अ सर्टेन इशू? गुनगुन। सो जैसा कि मैंने कहा कि हम ग्लोबल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वह ग्लोबली है। अगर किसी कंट्री के बॉर्डर के बाहर ये चीज हो रही है तो यह, जैसे रिफ्यूजीज की समस्याएं बहुत ज्यादा अत्यधिक हो चुकी हैं, तो पूरे देश को समझना होगा, पूरे राष्ट्र को समझना होगा कि हम किस प्रकार जो उनका कल्याण है कैसे कर सकते हैं, कैसे जो उनकी प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सारे राष्ट्र को एक साथ आना होगा और इस कंसर्न को समझना होगा। जो अगर हम ग्लोबल जस्टिस या किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स ग्लोबली चल रही है, सारे राष्ट्र को, पूरे विश्व को एक होके करना होगा। जैसे कॉस्मोपॉलिटिज्म बात करता है वर्ल्ड स्टेट की, दैट वी आर वर्ल्ड स्टेट एंड वी आर अकाउंटेबल फॉर द
पीपल, ऑल द पीपल आर अकाउंटेबल, एंड वो ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है, तो ग्लोबली हमें इस प्रॉब्लम्स को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना होगा। थैंक यू। Okay, understand. एक और क्वेश्चन है कि in the anarchical international society as according to Hadley Bull, does global justice really exist? यानी कि जो अराजक अंतरराष्ट्रीय समाज है, जैसा कि हेडली बुल कहते हैं उनके अकॉर्डिंग, क्या ग्लोबल जस्टिस सही में एग्जिस्ट करता है या फिर सिर्फ ये गिमिक है? हाँ, सो क्रिटिक्स का मानना है कि ग्लोबल जस्टिस सिर्फ थ्योरीज में है, ये प्रैक्टिकली नहीं हो सकता है। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि सभी राष्ट्रों को साथ आना होगा। कि ग्लोबल जस्टिस ऐसे ही पूरी नहीं हो सकेगी कि कोई एक नेशन उसके लिए पुरजोर कार्य कर रहा है, परंतु जो पूरा जो विश्व है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो यह बात करता है बियॉन्ड द बॉर्डर्स गवर्नेंस की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सारे नेशंस को, सारे राष्ट्रों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, जो भी ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। इमैनुअल कांट कहते हैं कि हमें विश्व के सारे राष्ट्रों का कोऑर्डिनेशन, उनका सामंजस्य और उनका सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए। तो यह पॉसिबल हो सकता है अगर सभी राष्ट्र इस कंसर्न को समझे, और जो भी उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है ग्लोबल जस्टिस को लेकर, ग्लोबल पीपल को लेकर, वर्ल्ड स्टेट को लेकर, अगर वह ऐसा करें तो हाँ, यह पॉसिबल हो सकता है। Okay, so my final last two questions, and the first and I would second last question would be how can education systems worldwide contribute to a better understanding and implementation of global justice? यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड वाइड में, वो कैसे इसमें एक अपना हाथ बढ़ा सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन ग्लोबल जस्टिस का और बेहतर तरीके से हो पाए? एजुकेशन सिस्टम का इसमें क्या रोल होगा? एजुकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए। अगर वहां का जो युवा है, अगर वह पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो उसे पता होगा कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसके साथ अन्याय हो रहा है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमारे साथ सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। अगर वह पढ़ा लिखा है तो वह फाइनेंशियली भी आत्मनिर्भर होगा, वो समाज के कल्याण की भी कार्य कर सकेगा। अगर उसके अंदर स्किल्स है किसी भी प्रकार की, तो वो समाज के कल्याण के लिए भी उसे यूज कर सकता है। जैसा कि गांधी जी कहते हैं कि एक युवा को शिक्षित होना बहुत बहुत आवश्यकता है, ताकि वह जिस गांव से वो निकला है, जिस गांव में वो रह रहा है, वह उस पे उसको भी जो जो उसने पढ़ा है या सीखा है, जो भी उसकी कैपेबिलिटीज हैं, वह उनका उपयोग उस गांव के लिए, उस समाज के लिए और उस पूरे राष्ट्र के लिए कर सके। अगर प्रत्येक युवा एजुकेटेड होगा, तो हमारी जितनी भी ड्यूटीज हैं अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, वह सब पूरी करेंगे और कोऑर्डिनेट करके हम उसको स्थापित कर सकते हैं, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे एज अ सिटीजन और एज अ ग्लोबल सिटीजन। So we Okay, can great. overcome Thank these you. And the last things. and the final question would be, Gungun, as a newcomer, and what was your experience with the Graduate Scholar Talk series? आपका experience कैसा था Graduate Scholar Talk series के साथ? The journey that you have spent a week or more than a week, can you define in few words? ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही प्रेरणादायक रही। मैंने बहुत कुछ सीखा डॉक्टर मनीष सर से, मानवी दी, जिन्होंने थ्रू आउट द जर्नी मेरी बहुत हेल्प की, मुझे गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने इस पे जो अपना टॉपिक था उसको और डीपली जाना, उसको समझा, और मैं पीपीटी बनाना सीख गई, जो मुझे पहले नहीं आता था। मतलब बहुत सी चीजों में इन्होंने मेरी इस ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक्स ने मेरी स्किल भी एनहेंस करी, टेक्नोलॉजी के लिए भी, और मेरा जो सोचने की जो क्षमता है उसको भी बहुत बढ़ाया। मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू सर to supporting me throughout the journey, and thank you so much. It's an achievement for me to be a part of GSTS Talk. Thank you. Thank you so much, Gungun. Thank you so much. And as a lot of people have listened, Gungun, that this platform and whenever speaker comes, it really helps. It not only helps speaker but the listeners too. So I would like to request here that there is a registration form in the comment section. So I would request to all the teachers and the students who are listening today, if they can forward this registration form or registration link to the students who really want to speak something, who have the potential to speak, and if they don't have, we can provide them the potential.
we do this. So if they have, please help us, and please, I would say, forward this link to as many as people as you can, right? So moving forward in the program, I would like to again call our guest of honor today, Mr. Saurabh sir. Sir, please provide your comment on the topic talk and the event today. थैंक यू अजय। गुनगुन, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आपका। आपने बहुत अच्छे से मैं मनीष सर को बोलता भी रहता हूँ कि आई रियली गेट एनवियस टू हियर दिस यंग माइंड्स। हम सोचते हैं कि बीए में काश हम लोग भी इतने कॉन्फिडेंटली बोल पाते। तो मुझे बहुत खुशी है। और यू कवर्ड अ रियली वास्ट एक्सपेंस फ्रॉम अप्रोचेज टू नीड, और पूरे मुख्तलिफ विचारकों सबको आपने विचारधाराओं को आपने सम्मिलित किया। और क्वेश्चन फिर वही है कि ग्लोबल जस्टिस जरूरी क्यों है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? और क्या सिर्फ ये किस्से किताबों में, क्या ये सिर्फ यूटोपिया है कि ये जिसको हम हासिल नहीं कर सकते, जिसके लिए हम बस एक गिमिक, जिसको कहा अभी किसी ने कि हम गिमिक मान के चल रहे हैं। गिमिक नहीं है, हमारे पास्ट इंस्टेंसेस ये शो करते हैं कि ग्लोबल जस्टिस एक गिमिक नहीं है। अगर जहाँ पे कुछ कंट्रीज साथ आई हैं, जहाँ पे कुछ सही में काम हुआ है, वहाँ पे सच में काम करके दिखाया भी है। आप चाहे वो ओजोन लेयर डिप्लेशन पे जो हमें सक्सेस मिली है, उसमें आपको पता है कि सारी कंट्रीज ने, सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर काम किया और तब जाकर हमें वो सफलता मिली। तो और फिर इसमें दो जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले हैं, और जस्ट बिकॉज हम कर क्यों रहे हैं। तो जो कांट को आपने इंक्लूड किया, और जो डियोंटोलॉजिकल और कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का जो आइडिया है, ग्लोबल जस्टिस, अभी हम कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कृत्य कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पूरे वैश्विक समुदाय पे पड़ना है, तय है। हमने बस कोरोना के समय में बस 1 महीने के अंदर में देखा कि पंजाब से धौलाधार रेंज की पहाड़ियां, वो धौलाधार रेंज देखने लगा। तो ये इतना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि लोग ये कर नहीं सकते, ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। जरूरत है बस पूरे विश्व में एक मन बनाने की, और एक तरीके से सब लोग साथ में मिलकर उसके प्रति, क्या कारण है कि इतने सालों बाद भी इतने सारे आईपीसीसी आ गए, वी आर स्टिल फेलिंग टू गेट टू द टारगेट ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस। हम अभी तक उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। तो समहाउ yesterday Indian Express had brought an article on the Republic of AC. Entire India is going berserk about AC because आपके यहाँ पे इतनी हीट वेव्स हैं every day. People are buying AC for the first time. People in their 60s, 70s, they are buying AC for the first time. What impact is it going to have on the society, per se, on your cities? Your cities are going to turn into heat islands. Heat trap हो रहा है। आपके घर का एनवायरमेंट बस ठंडा हो रहा है, पर आपकी सिटीज, आपके जो पूरे सराउंडिंग्स है, वो तो फिर भी गर्म है। तो पूरे विश्व में ग्लोबल जस्टिस, और आपने तमाम तरीके की बात की, आपने पॉवर्टी पे, पॉवर्टी भी सिर्फ इनकम की नहीं, आपने मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी की बात की कि अगर किसी के पास एक बेसिक इनकम है, या कोई अगर योग्य है पर उसको योग्यता के अनुरूप उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो भी एक तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी एक तरीके की पॉवर्टी है। आपने वुमेन सिक्योरिटी की बात की, आपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की बात की। क्लाइमेट चेंज, look at the newspaper and every day, few days back we were fighting with heat waves. Today you see dozens of cities are inundated with flooding everywhere. So इस तरह के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को हम फेस कर रहे हैं। दिस ईयर Kerala and Himachal Pradesh, they witnessed heat wave for the first time in history. Europe is seeing temperatures which they have never seen in their history. UK में temperature is crossing 40 degrees Celsius. So all these things are taking place, and this clearly shows that we have not been that serious as we have been about other things. We are very serious about achieving, GDP growth हम 8% कर लेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर लेंगे, या $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, एफडीआई इन्फ्लो कर लेंगे। बट थिंग्स दैट रियली मैटर, उसके बारे में कहीं ना कहीं हमारे जो भी हुक्मरान है पूरे विश्व के, उस तरीके से
प्रतिबद्ध नहीं रहे हैं, एंड दैट इज वाई वी हैव बीन फेलिंग, एंड इतने एक्सट्रीम सिचुएशंस हमें फेस करने को मिल रहे हैं। मुझे बहुत एक इंटरेस्टिंग कपलेट जब मैं ग्रेजुएशन में था तो एनवायरमेंट के पेपर में किसी ने बताया था कि अ, कुछ लोग शहर से आए हैं पेड़ काटने हमारे गांव में, अभी धूप बहुत है, बैठे हैं उसी की छांव में। तो कितना आयरॉनिकल और कितने सही तरीके से उसने उस आयरनी को डिपिक्ट किया कि लोग जिन चीजों को भाग रहे हैं, जिन चीजों के लिए बेसिक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिन चीजों को प्रिजर्व करना चाहिए, दे आर फाइटिंग फॉर दोज थिंग्स। और इसमें सिर्फ एक डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, वहां का उसका भी एक डिफरेंशिएशन है। वी सॉ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड। Developed countries were stockpiling vaccines. Developing countries were not even they did not have vaccines for a single dose. और वो डेवलप्ड कंट्रीज एक्स्ट्रा डोजेस स्टॉकपाइल कर रहे थे कि बाद में कहीं जरूरत हो तो वो कहीं इसको काम आ जाए। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, और मुझे अभी ईशोपनिषद का एक जो पहला श्लोक है वो याद आ रहा है कि ईशा वास्तमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजथा मां गद्या कृष्ण सुगधनम। कि आपके पास जितना है, जितना उसने दिया है, आप उतने में आप उसको एंजॉय करो, उसको रिलिश करो, अदर्स इंक्रोचमेंट नहीं करो। और ये पूरी जो प्रॉब्लम है, पूरा जो सिस्टम ग्लोबल इनजस्टिस है या फिर पॉवर्टी है, इशू यही है कि एंक्रोचमेंट हो गई, लोगों ने एंक्रोच कर दिया दूसरे स्पेस में, दूसरे टू कॉल टू ब्रिंग रूसो वुड कॉल दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी ने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। एंड द फर्स्ट मैन हु पुट अ वायर ऑन अ पीस ऑफ लैंड एंड कॉल दिस इज माय लैंड, ही वाज द करप्टर ऑफ सिविलाइजेशन। उसने पूरी सिविलाइजेशन को करप्ट किया। सो ऑल्दो दैट इज एन एक्सट्रीम व्यू, बट ऑल दिस थिंग्स आर देयर। एंड बट फिर कुल मिलाकर बात हुई कि समाधान कहाँ से आएगा। और समाधान बताया कि जब सारे लोग एक अवेयरनेस लोगों में होगी, जब लोग आपस में जुड़ेंगे, सरकारों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, सरकारों के ऊपर एक जिम्मेदारी डालेंगे। आपने देखा हमारे इंडिया में ही वी हैव सो मेनी मूवमेंट्स व्हेन पीपल फोर्स्ड गवर्नमेंट टू रोल बैक दोज इनिशिएटिव्स, दोज पॉलिसीज व्हिच वर गोइंग टू हार्म द एनवायरनमेंट। चाहे वो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट हो केरला में, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, और पूरी दुनिया में आप सोचिए भूटान में अभी भी वो हैप्पीनेस पे अपने जीडीपी को मेजर कर रहे हैं। भूटान में एक छोटे से प्रोजेक्ट्स के पास करने के लिए भी वहाँ के लोकल काउंसिल्स की परमिशन लेनी पड़ती है। और दुनिया के बहुत सारे देश, पर समस्या वही कि वो अपने देश को तो साफ सुथरा रखना चाहते हैं, सारा ट्रेस, सारा जो जहाँ से ये गंदगी, जहाँ से ये पोल्यूशन होना, पोलिटेंट्स, वो आपको दूसरे जगह पर वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो उस तरह पे भी इक्विटी की जरूरत है कि पूरे विश्व में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कॉमन है, और जैसा आपने बहुत सही कहा कि और जो पूरी डेवलपिंग कंट्रीज की डिमांड भी रही है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इज कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, बट वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस सिचुएशन, वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस। ये सिचुएशन के लिए हमको ब्लेम नहीं कर सकता। तो हम लोग की कॉमन जिम्मेदारी है और आवश्यकता है कि वो देश जिन्होंने इसका लाभ उठाया है, जिन्होंने इसकी बुनियाद पे इमारतें खड़ी करी हैं, वो इसकी विशेष तौर पर जिम्मेदारी लें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, फंडिंग मिले। आपको पता होगा कि जिस फंडिंग की बात की गई थी पेरिस समिट में, अभी तक पैसा पहुंचा नहीं किसी के पास। अभी तक फंडिंग, किसी भी कंट्री को फंडिंग मिली नहीं है। ये जो हिपोक्रेसी है और ये जो ड्युअलिटी है, इसको कहीं ना कहीं चैलेंज करना होगा, खत्म करना होगा। और तब जाकर हम सच में उन क्रिटिक्स को भी जवाब दे पाएंगे कि ये गिमिक नहीं है, ये हो सकता है, और वास्तव में हम एक बेहतर वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड गुनगुन, आप किस ईयर में हैं?
Sir, I've recently graduated from Rajdhani College. Oh, you're graduate. चलो बहुत बढ़िया. So all the best for your future endeavors. And thank you, sir. Thank you, Manish. Thank you so much, sir, for your intellectual words, and I would say again the guiding words. And we would like to hear you more often in coming days for sure. At the same time, I would like to thank Mr. Sushant Jha, who is Gungun's teacher, for guiding her in this academic pursuit. At the same time, I would like to request him to forward this message of Graduate Scholar Talk series to his fellow students so that new students could come and they can join the Graduate Scholar Talk series and they can also speak their heart out on the variety of topics. Thank you. Thank you so much, everyone. Now, this is the time for the continuity and the change. That is, I would like to call upon the next speaker of the next Sunday, that is Miss Megha, who is from the Mata Sundari College, and she would be speaking on the Mithila painting. And she would be, I would be talking in brief, talking down the line from the history to the present about the Mithila painting. Miss Megha. Good evening, everyone. Good evening, everyone. My name is Megha, and I am currently pursuing my graduation from Mata Sundari College in BA program, and my major subject is history. Being born and raised in Mithilanchal culture, I am deeply inclined towards Mithila art. My curiosity in knowing more about Mithila painting and its evolution over time, I'm going to discuss with you all on coming Sunday. My topic is culture metamorphosis in Mithila art, and my objective for this includes to understand the meaning of culture and culture metamorphosis. Second, a brief history of Mithila and its geographic location. Third, to know the depth and features of Mithila art. I am discussing about two types of Mithila art. One is Madhubani painting, and the second is about Arpan. And then the fourth is its evolution from mythological origins to the global recognition. Then fifth, initiatives taken by government and non-government organizations in preserving the art form. While wrapping up, I'll say that the talk on coming Sunday would be captivating, and I'll be delighted to share this learning with you all. I look forward to seeing you all on next Sunday. Thank you. Okay. Thank you so much, Megha. I would like to again like to tell you what she's going to talk in the next Sunday or the coming Sunday. She would be speaking over the Mithila painting, and she would be talking about the Mithila paintings from the starting to the end. Her objective would be understanding the meaning of the, I would say, Mithila paintings, brief history of Mithila art of Mithila and the teachers associated with the Mithila painting, evolution and mythological origin of the Mithila paintings, efforts which are being taken by the government of India. So I would like to request, and the Graduate Scholar Talk series like to request all of you to come to the next Sunday and please forward this message to everybody who is a lover of art. Surely Megha would do the justice with her topic. Now this is the time to wind up the event. For that, I would like to call upon Rakesh sir to give the vote of thanks. Sir. Sir, you are mute, sir. Sir, you are mute. Rakesh sir, you are mute. If you can hear me. Thank you, हाँ, sir. थैंक्स गुनगुन। आपने न्याय के बारे में और खास करके जो ग्लोबल जस्टिस है उसकी आपने सभी पहलुओं को छुआ है, वो चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, आपने हर फील्ड को छुआ है। और उसमें जिस तरीके से अभी ग्लोबल लेवल पे जो समस्याएं आ रही हैं, आखिर क्या कारण है कि न्याय की आवश्यकताएं पड़ती है, कहीं ना कहीं उसके बीच में अन्याय छुपा हुआ है, इनजस्टिस छुपा हुआ है, इसलिए हम लोग जस्टिस की बात करते हैं। तो एक तरफ हम लोग ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं और उसी तरफ हम देखते हैं हमारा जो भारत है, जो एक तरीके से न्याय की जननी कह सकते हैं, उसमें महात्मा बुद्ध को ले सकते हैं, उसमें महावीर को ले सकते हैं, कबीर जैसे मतलब कि दार्शनिकों को ले सकते हैं। उसमें यह देखिए कि किस तरीके से हम लोगों ने
वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। पूरा विश्व को जो है एक परिवार के तौर पे हम लोग जोड़ करके रखना चाहते हैं। तो आप एक कोरोना काल में आप एक एग्जाम्पल देख सकती हैं कि किस तरीके से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ था, और उसमें कई सारे जो अफ्रीकन जो कंट्री थे, जो गरीब कंट्री थे, उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं था। उसमें जो हमारा जो देश, जो भारत देश, जो एक तरीके से कह सकती हैं कि जो वैश्विक लेवल पे जो है एक लीडिंग कैपेसिटी वाला जो देश बन करके जो उभर रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एक ग्लोबल लेवल पे जस्टिस की बात करने से ही लेकर के उभर रहा है। हम लोग देखते हैं कि न्याय जो है एक तरीके से मानवता का एक इतिहास का जो है, समस्त मानव के इतिहास में न्याय और अन्याय के बीच में एक तरीके से संघर्षमयी का इतिहास रहा है। और ये शक्तियां आप देखती हैं कि ये हीगल के दृष्टिकोण से भी आप देख सकती हैं। आपने बताया कि मतलब कि जो इसके बारे में जो हीगल का दृष्टिकोण हो या फिर कार्ल मार्क्स का जो विचार हो, इसमें आप देख रही हैं किस तरीके से, और भारत में आप देखिए कि किस तरीके से जो जाति भेद है, छुआछूत है, एक तरीके से दास प्रथा पूरे वैश्विक लेवल पे जो चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में जो पुरुष सोसाइटी जो है, मेल सोसाइटी है, वो कैसे फीमेल सोसाइटी के साथ साथ जो है एक इनजस्टिस हो रहा है बड़े लेवल पे। और खास करके उसमें एक सवाल यह भी उठता है कि महिलाओं के बीच में भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं को लेकर। आप देखिए, मैं यह सवाल आपसे करने वाला था, लेकिन इसी बीच में मुझे वोट ऑफ थैंक्स में भी बोलना पड़ रहा है कि आप यह देखिए कि वुमेन्स को लेकर के कि किस तरीके से सोसाइटी में इनजस्टिस चल रहा है, कि जो गोरी महिलाएं हैं वो काली महिलाओं के साथ अन्याय कर रही हैं, जो लंबी महिलाएं हैं वो छोटी महिलाएं के साथ कर रही हैं, जो वेस्टर्न कल्चर वाली जो महिलाएं हैं वो अलग तरीके की कल्चर वाली महिलाओं के साथ वो उसको हीन भावनाओं से देख रही है। तो कहने का मतलब है कि ये सोसाइटी में प्रारंभिक दौर से ही चलता आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपने बहुत सारी चीजों को सुझाया और उसमें बहुत सारी चीजों को आपने बताया कि किस तरीके से इस अन्याय पे न्याय को विजय दिलाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारा जो इंडियन कंसेप्ट है कि किस तरीके से यह न्याय की जो परिकल्पना है, और खास करके इसमें एक न्याय में जब आप बात करती हैं तो ग्लोबल जस्टिस में एक सोशल जस्टिस आता है, ठीक है ना, सामाजिक न्याय आता है। और यह सामाजिक न्याय आप यह देखिए कि क्या अभी भी वो चाहे वैश्विक लेवल पे क्या यह जस्टिस मिल पाई, यह सवाल है, नहीं मिल पाई है। अभी भी कई सारे जो क्षेत्र है अभी भी अछूता रहे हैं, और उसमें भी न्याय की मतलब की परिकल्पना की जा रही है कि न्याय मिले। अभी आप देखिए कि पूरे विश्व में एक ग्लोबल लेवल पे जो व्यक्ति अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, और गरीबी और अमीरों के बीच में एक खाई बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये जो हमारी जो जस्टिस है, क्या यह सही तरीके से हो पा रही है? जो व्यक्ति एक तरीके से सुविधा भोगी हो गया है और एक व्यक्ति जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए जो है सो तड़प रहा है, ये एक तरीके से पूरे वैश्विक लेवल पे, आप चाहे वो अफ्रीकन कंट्री में आप चले जाइए, वहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं उस तरीके से नहीं है, शिक्षा की सुविधाएं नहीं है। आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाइए, वहां हर तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसलिए इसको लेकर के खास करके जो यूएनओ है, ये जो बड़ी-बड़ी जो संस्थानें बनी हुई है, इसको इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए कि किस तरीके से ग्लोबल जस्टिस का यह जो सवाल है, उस सवाल पे विराम लगे और सबको एक साथ जो है सो न्याय मिले। इसी न्याय की परिकल्पना के साथ आपने जो सारी बातें कही है, वह बहुत ही कम समय में आपने सारी चीज़ों को समेट दी हैं। यह बहुत बहुत मतलब इसके लिए आपको धन्यवाद, और बहुत ही सरल शब्दों में इसको समझाया है। और यह जो प्लेटफ़ॉर्म है, जीएसटीएस का प्लेटफ़ॉर्म है, आप जैसे जो ग्रेजुएट स्कॉलर्स हैं, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। और आपने जो बताया, यह सवाल या बच्चों के मन में भी आना चाहिए कि किस तरीके से ग्लोबल जस्टिस आने चाहिए सोसाइटी में, और खास करके जो निचले तबके में जो लोग इसको सफ़र कर रहे हैं, वो उसको कैसे इससे निजात दिलाते। थैंक्स इसके। और खास करके मनीष सर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि यह जो प्लेटफ़ॉर्म जो शुरू किए हैं,
या खास करके जो सिविल सर्विसेज के लिए जो बच्चे भी हो वो भी तैयार हो, उनके अंदर एक मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी हो। और आपने जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, और सारे बच्चे जो आते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, यह देख करके बहुत खुशी होती है कि एक प्लेटफॉर्म उनको प्रदान किया जाता है। और जीएसटीएस जो ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज है, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू। Ajay, over to you. Okay. Yeah, yes, sir. So as Rakesh has a different style of saying things, so I would like to formally end this particular event by saying thank you to everyone who is present here today, and special thanks to the speaker of the day, Miss Gungun Dubey, who has exceptionally presented her talk and articulated her opinion in a very, I would say, well mannered. I would also like to thank Mr. Saurabh sir for coming and accepting our invitation today and gracing the event. And I would hope and I would sure that he would probably coming in the next talks also and providing her valuable his valuable opinion at the same time. I would like to thank each and every person who is present here today who had graced our, I would say, platform, or I would grace the talk today. Thank you, everyone. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you.